while you're traveling Indian Railways. We already are standing in line. आज जेनी लाइफ में पहली बार इंडियन रेलवेज में सफर करने जा रही है। मुझे पता है ये रशियन ट्रेन जैसी नहीं है, लेकिन इंडियन रेलवेज की एक बात ने उसका दिल जीत लिया। इससे वजह से सुबह से रशियन ट्रेन की बहुत तारीफें करी, जो कि बात सही। रशियन ट्रेन इज गुड बट दिस फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल इन इंडिया। Only in India, yeah. क्या जेनी को इंडियन रेलवेज पसंद आई, ये आपको आगे पता चलेगा। It's not a cute look getting kicked out of the bar when you're no longer 19. जेनी इंडिया में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है और मैं चाहता हूँ वो सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि हरिद्वार और ऋषिकेश भी देखे। इसलिए आज हम गोवा से दिल्ली जा रहे हैं, वो भी ट्रेन से। ये जेनी की लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होने वाला है इंडियन ट्रेन का। सच कहूँ तो मुझे उसके रिएक्शन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि आज उसके लिए हर चीज़ नई है। I'm still getting used to the thought that we can go out all this time. I mean, I think I didn't have enough. Yeah. Because we were mostly staying in. We didn't explore a lot. I didn't get to nature a lot, which I dreamt of. So probably that means that should give it another try. Yeah. And more nature next time. Sure. A bike or maybe a car. I really want to spend more time in nature. This is literally the second time I see the forest. जेनी, फर्स्ट राइड बिफोर द ट्रेन। अभी इस समय जेनी जो है वो इंडिया में है। मैंने रशिया में तो ट्रैवल किया है ट्रेन में, वहाँ के ट्रेन की तो बात ही अलग है। और जेनी ही खड़ी है, ये मुझे रिकॉर्ड कर रही है। इसका पहला एक्सपीरियंस है। इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन इंडियन ट्रेन। Nice. Yeah, let's see. I'm not asking you to give the fake compliment. Not enough spaces comparing to Russian trains. Like Russian trains are the best. Yeah, agree. Really. Yeah. Comparing to Russian trains, it's like it's not fair for any other country's trains. So. We'll get through this. It's okay. Yeah, let's see. We have a shift in Mumbai, right? Shift? Or we go directly to this. Belly. Oh, crazy. There is no right? any. Because we're talking something about shifting. It's quite cold. Can we start eating? Yeah. Settle down, people come. कोई सीट नहीं मिली हमें, तो मेरे को 3E में दिखी थी खाली सीट, तो वहीं बुक की थी हमने। मेरा था कि कम से कम 3rd AC या फिर 2nd AC मिल जाए, सब जगह फुल था। अब खुद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ 3E। ठीक है यार, मतलब बेस्ट नहीं है लेकिन उतना ख़राब भी नहीं है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू रशियन ट्रेन की बात ही अलग है, वो अलग ही चीज़ है। He saw like white face, a lot of stuff. Because it's like right there. If that was something like real lot that we couldn't carry at least to the station, then maybe we would have. Or if, for example, there was a woman with children. I always carry my bags. We're strong Russians. We don't need that portier carrier, anything. But that was like that was possible to take, but that would be such a hassle, and it's quite a long way. And we have to go there, back. That was good. We just packed everything in the car, electric car, and I was surprised to see that ramp. Yeah. He just got in the ramp and then directly to the train. To like, he stopped by, and he only didn't carry our things inside. Yeah. All the rest it costed like 150 rupees. That's like nothing. Seriously, it's like this is the best investment in comfort. हम रेलवे स्टेशन के बाहर से यहाँ पे आ रहे थे अपने कोच में। सामान हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था, और यहाँ पे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चलता है इलेक्ट्रिक गाड़ी, आप बैठो पर पर्सन दे दो। बाहर नहीं है कहीं ऐसा सिस्टम। हमने शायद 150 पे किए हैं दोनों ने सामान के साथ। ये देख के हैरान थी कि यहाँ ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है।
क्योंकि इनके यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, सामान लो उठा के जाओ और क्रॉस करो, करना है तो भीड़ नहीं होती, बस ये एक एडवांटेज है वहाँ पर। लेकिन सिर्फ 75 रुपये पर पर्सन, ये भी कहने काफ़ी इम्प्रेसिव है ये चीज़ तो, क्योंकि हमारे यहाँ होना चाहिए। और मज़े की बात, बंदे ने बाहर से Aloo dushki. आलू दुश्की Can you smell it? या Really yummy. I want to start eating. Sorry for interrupting you. क्योंकि जब वो जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हैं तो रैम्प बना रखा है कि ऊपर आते हुए रैम्प, नीचे जाते हुए रैम्प। हमारे कोच के बिल्कुल बाहर उतारा उन्होंने। Nuts, all the stuff we have a lot. Yeah. As a Russian person, I have this habit. Going somewhere, especially by the train, should take food. Like we have nuts here, jam, sandwich, aloo dushki, water, even tea bag. I have cookies, crackers, bananas. We have bananas. We should eat them. We have like cake. बहुत सारा सामान ले लिया खाने के लिए। Trains. The only thing in Russian trains, you cannot order food. I mean, you can order. They will cook it in the train. Uh-huh. That would be like twice or thrice more than you would buy in the city. There's no such thing as delivery to the train, which I hope we will try tomorrow. I really want to try, but we need to eat this all during this trip. I bet you if you check all the bags of the people, those who are here, they have food inside the bag. They don't carry so much food. First reason is it's extra luggage. Second is the food is cheaper in the train, outside the station. It's cheaper. Yeah. But it's good that But you took it. I cannot go to the train without food. It's good. Even if it's like it's like watching a movie with the chips or popcorn. It's like train always with the food. That's great. And in Russia, we oftenly share with other people who sitting there. Maybe someone doesn't want. And it's like we always try to share with others our food. Can you see? That's food. चाय। ये हैरान हो गई है, ये मुझसे पूछ रही थी कि क्या ट्रेन में चाय कैसे मिलेगी। मैंने कहा क्योंकि बाहर सिस्टम तो ये है कि लेना पड़ता है। Do you want चाय? ओके। क्योंकि बाहर जितनी भी सेंट्रल एशिया, रशियन जितनी भी ट्रेन है, चाय तो बहुत एक्सपेंसिव है, उनसे ऑर्डर करो। एक गर्म पानी का हीटर लगा होता है, गर्म पानी ले लो और फ्री होता है, खुद आके बनाओ। ख़रीदने में तो 2-3 गुना ज़्यादा का फ़र्क है। यहाँ पे मैंने कहा सस्ता है, कोई इसलिए कैरी नहीं करता बहुत सारा फूड। लेकिन रशियन ट्रेन में जितने भी लोग हैं, जितने भी पैसेंजर हैं, वो सब कैरी करते हैं बिल्कुल एक हैवी बैग फूड का, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है स्टेशन पे और ट्रेन के अंदर। और जैसे ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ी, हमें जोर से भूख लग गई। हमने अपना खाना निकाला और खाना शुरू किया। वैसे जेनी की एक आदत मुझे बहुत पसंद है। जब भी हमें कोई लंबा सफ़र करना होता है, वो पहले से बहुत सारा खाना प्रिपेयर करती है रास्ते के लिए। रशिया में जब हम ट्रैवल कर रहे थे, तब भी मैंने ये चीज़ नोटिस की, और अब इंडिया में भी बिल्कुल वही। और जेनी खिड़की से बाहर देखते हुए सफ़र को एंजॉय कर रही थी। धीरे धीरे पैसेंजर आने लगे, कोच भी भरने लगा और हम सुबह से ही उठे हुए हैं। जेनी अपने सीट पर जाकर थोड़ी देर के लिए सोने चली गई। हमें फिर से भूख कैसे लग गई पता नहीं क्यों। इसी बीच ट्रेन में वेंडर्स भी आते जा रहे थे, लेकिन जेनी ट्रेन का खाना अवॉइड कर रही थी। उसने नोटिस किया कि जो लोग जिस हाथ से खाना बेच रहे हैं, उसी हाथ से नोट भी टच कर रहे हैं। Try this. No, this would be good. I'm quite afraid because he took it with his hands. Then he took the money. The same hands he's taking money. हम बातें कर ही रहे थे, तभी वो मोमेंट आ गया जिसका जेनी कब से वेट कर रही थी। Now we're about to feel a special operation of getting food while you're traveling Indian Railways. We already are standing in line because this train is only standing 3 minutes, and we have to let people go, grab our food, pay all in just 3 minutes or even less, seconds actually. Is that him? Yeah. That guy?
सीट नंबर क्या है? 21 है ना? क्योंकि जोमेटो से ऑर्डर है। You got it? Got it? इस तरह से सुबह से रशियन ट्रेन की बहुत तारीफें करी, जो कि बात सही, रशियन ट्रेन इज़ गुड बट दिस फैसिलिटी इज़ ओनली अवेलेबल इन इंडिया। Only in India, yes. कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, सीट के पास आएगा। सबको एक्सपीरियंस करना होता है, इसने भी एक्सपीरियंस किया है। ओके, Russia, you can also order in the train, but only what's in the train menu. But here you can order from many Yeah. different. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर इंडियन रेलवे। Yeah. ओके, सो अब जा रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए खड़ी है। प्लीज़ कम फास्ट, कम फास्ट। दवाई चिली फ्लेक्स, ओरिगानो। City parcel. Uh-huh. Parcel. What else? Bread. Pizza. Hot. It is. This thing is really hot. Your hands clean? Did you Yeah. touch anything outside? No, I touched the money. Okay, now you're Where ready you- to eat. Yeah. You can eat now. Okay, so do you have sanitizer? Use it. Yeah. How do you call this? Oregano. 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 In Russia also oregano. In Spain, in Spanish it's oregano. 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 हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और सच में वो काफ़ी सरप्राइज थी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंडियन रेलवेज में इस तरह की फूड सर्विस भी अवेलेबल है। कब बातें करते करते सोने का टाइम हो गया, पता ही नहीं चला और देखते ही देखते सुबह हो गई। अब दिल्ली स्टेशन आने में बस थोड़ा ही समय है। एक चीज मैंने ट्रैवल से सीखी है, सोलो ट्रैवल और किसी पार्टनर के साथ ट्रैवल करने में बहुत फर्क होता है। जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हो तो सिर्फ अपना सोचते हो, लेकिन जब कोई आपके साथ होता है तो आपको हमेशा 2 कदम आगे का सोचना पड़ता है। जेनी अभी चैन से सो रही है, मैं उसके नींद को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने चुपचाप सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया। Say this is a genius idea. They have 2 toilets and a sink, so that the person who wants to wash their hands doesn't have to occupy the bathroom. It's a good idea. वैसे जेनी की एक बात मुझे बहुत पसंद है, उसको हर चीज खुद एक्सपीरियंस करनी होती है, बच्चों की तरह। This facility you can get only in the Indian train, not in Russian train. Nowhere. People just open. But be careful, be careful. It's nice, you can look at the sun. Yeah. और उतरने से पहले उसने इंडियन रेलवेज का ब्रेकफास्ट भी ट्राई किया। जिस खाने को वो कल तक अवॉइड कर रही थी, आज वही ब्रेकफास्ट उसको काफ़ी अच्छा लगा। कभी कभी पहला इंप्रेशन ही सब कुछ नहीं होता। और फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए। यहाँ से हम सीधा मेरी सिस्टर के घर जा रहे हैं, क्योंकि असली जर्नी अभी बाकी है, हरिद्वार और ऋषिकेश की। भाई साहब इतना कम सामान लेकर रखो। Oh my God. सामान तो बहुत सारा है भाई।
इसी तरह सामान ले आता हूँ, हाँ सामान ले आता हूँ मैं। नहीं नीचे कुछ नहीं है। यही है ना जो है। और हमें जानी exhausting. I was missing you. Same here, same. हाँ सारे यही है। बाहर नहीं आना होता बेउद्धा। फाइनली जेनी ने भी इंडियन रेलवेज को पहली बार एक्सपीरियंस किया। सफ़र लगभग 2 दिन का था, लेकिन सच कहूँ पता ही नहीं चला कि इतना लंबा वक्त कब निकल गया। सबसे अच्छी बात यह है कि उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव रहा और मुझे इसी बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब हम दिल्ली से निकलेंगे हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ। वो सब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।